Recording. Okay, so I'm sharing my screen. Sure. Hmm. Can you see? तो स्क्रीन तो दिख नहीं रहा मुझे। तुम्हारी स्क्रीन दिख रहा है जहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह खुला हुआ है? आई थिंक योर VS कोड और एनीथिंग इज नॉट ओपन। Okay, let me share it again. Your Chrome page is only opened there, I think. Okay, stop presenting entire screen. Okay, now you can see it. Yes. Did you manage the port forwarding? Yes. Uh, Docker PS yes. PS hyphen A. Docker start. 3CT. Yes, the port is already enabled. Okay, and is it started there or not? Let me open and check. Neeraj, from your side, I think anything was I pending. think so. It was done, but actually, I think I created the project in the temp directory. So Yes, I think after like restarting the Ubuntu again, everything in temp directory goes lost. So Are you able to register the user? on a Docker file, no, actually, the database actually Mohit must have shared the compose file with you. Yes. I don't know like how the like On that day, I the to data told. check was the connected or no. connection between database and container. Yes, but I on that day I told you like still the for the starting purpose we will not use the Docker Compose. We will use a separate container, and for our application we will host our application in a separate container, and then we will go ahead with the things like go what to say with the things. No, the doubt was that actually, like, will we be attaching the database running on the EC2 with Docker or like what? No. Acha. I was telling you just let EC2 to run the database only and copy the Okay, URL, database MongoDB URL, and just let us connect over it. okay. That I was getting the error. Actually, I managed to install Mongo Compose, but I think I messaged you that earlier installed on my EC2 only, or I think on my Linux, but I was not able to connect with the database. Now everything is lost. Even I don't remember what error I was getting. Okay, no issues. Just go ahead and build the I think application. Mohit, Hmm. you already have na like database running on Yes, EC2. his database is running. I think Mohit, No, it is running on container, not on EC2 local It's machine. on the yeah. so I was also telling you like Neeraj, like you have to run this a fast API application on your local machine, and database will be the. Even I able to run the machine on my local, but I think I cloned the repository in the temp directory, Okay. and then after restarting, I think we are And aware that. I But think you were doing it in a EC2 instance. That's why there might. the thing is that actually first I did in EC2, but like we can't keep it open for 3 days. It will be charging us, right? Yes, Then that's. I closed the EC2 and started running. Now I'm Can you? having an Azure account running. So still 15, 20 days are left. Now I'll start practicing on Azure because it gives free credit. No issues. Go ahead with the AWS if you are having, or otherwise just go ahead and create a new AWS free tier account if you have lost. Account is already there, but Azure is even AWS is charging for private IP nowadays.
Like it's something chargeable. So I'm getting mail 80% is limit cross for free account. So I will be using Azure. Just we have to create a VM only. So Azure is Okay. definitely Just fine. go ahead and create a VM, no issues at all. And start, if you can start sharing your screen, and we will see that your application is running in the back end or not, like, sorry, in the local machine or not. Okay. Then I will have to clone the repository again, right? Okay, let me go ahead and do it for you. I tried running it on EC2 or local application was running Okay. before trying on Docker. Okay. But I am able to do this. Let me share my screen. See, here's the code for a Python file. Some dependency was also missing. Some email dependency I've forgotten. Then I had to take the help of ChatGPT. After that, only the application was able to run. Before that, the application was not running. Oh, okay, okay. I did not make a pip freeze on that day. That is why. Let me do it. Yes, email validator and other things was not there. That is why you were seeing those issues. So with the help of pip freeze, we can check like which requirements missing. No, if you have installed some project dependency Hmm. like IO or async IO, whatever the things are in Python, you can see if this is a virtual environment. Let me see. Deactivate. Source. So if you will see the list in a virtual environment, these are the current dependencies. It is viewed through the pip list, and also you can transfer it via pip freeze hmm, requirements dot txt. See. Okay. Is double Z. So this will change. This will update the dependency here, and this is what we need here now. Okay, backend is not. This should be in the backend. I think it's updated now. Can you pull again the image? Sorry, can you pull again the code? The code. Pull it.
मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड देन वी विल बी एबल टू फिगर इट आउट, बिकॉज ये चल जाना चाहिए था और नीरज में चल रहा है, तो सॉरी मनीष में चल रहा है, मोहित में। सो व्हाट इज द नेम? अच्छा अच्छा, Name is Mohit. हाँ सॉरी, इट वाज माहिन बिष्ट। Actually, this is my different email ID. That's why my name is showing like this. नो इश्यूज, नो इश्यूज। हाँ, सो जो ईमेल जो तुम्हारा चल रहा है डॉकर इमेज, वो लोकल उससे कनेक्टेड है या फिर तुम्हारे EC2 इंस्टेंस से कनेक्टेड? locally. तो EC2 इंस्टेंस वाला जो वहां पर जो प्रोफाइल है, जस्ट शेयर योर स्क्रीन, मैं एक बताता हूँ, .env को यूज करना पड़ेगा तुम्हें। Okay. पहले तो MongoDB का URL क्रिएट करो, if you have by replacing the admin password and other things and IP, and make sure go ahead and launch those things and make sure the things are working fine or not into the container, or sorry, into the virtual machine of the database. Right. तो सैटरडे को हम लोग सैटरडे और संडे को 3-3 घंटे का रखेंगे, तो बीच में जितना दिन का छुट्टा है वो हम लोग उसको कर लेंगे। अच्छा, Okay. तुमने इंस्टेंस बंद कर दिया था? Yes, yes. ये कर दिया था सर। ओके, तो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए तुम्हें, जो है स्टॉप करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। सर अभी प्राइवेट आईपी के भी चार्जेस लगते हैं? नहीं लगते भाई। लगते हैं। मैं पे कर चुका हूँ, अभी चालू हो गया है 1 साल पहले से। मैं तो 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे वाले में नहीं लगता है, एंड आई मैं थिंक आपको भी you are choosing something different at that time. तुम एक बार कोशिश करना कि प्राइवेट आईपी के चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि जो फ्री टायर अकाउंट है उसमें भी। और तुम प्राइवेट आईपी क्यों ले रहे हो? अभी तो तुम्हें जो इंस्टेंस का आईपी दे रहा है, ठीक है, उस आईपी को तुम यूज कर सकते हो। एंड लेट मी, अगर वैसा कुछ है तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर देता हूँ, इश्यूज एट ऑल। Because अगर AWS ही यूज करना है तो we will be using this whole AWS service. That is why I am telling you. So let me do it for you quickly. सर 1 फरवरी 2024 से $0.005 पर आवर चार्जेबल है प्राइवेट आईपी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वेट, शेयर माय स्क्रीन। सो ये इस महीने का बिल है मेरा, करीब बिल पीरियड जनवरी का $12 का बिल है। सो EC2 का, एशिया पैसिफिक सी, सो इट इज EBS वॉल्यूम का 0 चार्ज है, जो मैग्नेटिक प्रोविजन स्टोरेज मैंने यूज किया उसका है बस, ठीक है। और ऑन डिमांड लिनक्स मैंने T2 मीडियम इंस्टेंस यूज किया था, दैट इज व्हाई दे कॉस्टेड मी फॉर $7। एंड VPC के लिए मैंने यूज किया था, तो IB4 एड्रेस के लिए पर एड्रेस पर आर। एंड फ्री टायर वाला जब यूज करोगे आइडल, सो in use public IP address,
18 आवर्स और 633 आवर्स, उसके लिए 0 है। जब आइडल छोड़ दोगे, आइडल पब्लिक IP4 को, तब इसका चार्जेस है $2। जब यूज में है तो नहीं कटेगा, जब उसको आइडल छोड़ोगे तो डेफिनेटली वो काटेंगे फिर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, जब आइडल है, स्टॉप है मशीन, तभी लग रहा है उसका चार्जेस। ओके, तुम वो बात बोल रहे थे, ठीक है ठीक है। सो इस महीने का तो $12, मतलब ऐसा बिल आता रहता है तो इट ऑटोमेटिकली डिडक्ट्स जब ये बिल करने का टाइम रहा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि EC2 इंस्टेंस में मैनेज कर पाऊँ। ये तो डेमो वाला है, इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। चलो, तो मैं ये चीज मैं इसको तो मैं करते रहूंगा। मैं एक दो चीज बता देता हूँ तुम्हें जो कि अभी करना है। मेक श्योर कि ये दोनों, अगर डॉकर कंपोज फाइल में भी अगर तुम ब्रिज नेटवर्क कर रहे हो, तो अगर तुम डॉकर कंपोज के थ्रू ही अगर लोकल होस्ट में क्रिएट करना चाहते हो MongoDB, तो वो भी हमको मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट। बट आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ बता सकते हो फीचर इंजीनियरिंग तुम लोग में से कोई? सर EC2 जो, सॉरी, जो मोंगो चल रहा है उसका कनेक्शन कैसे बिठाना है कंपास से? कंपास से तो ठीक है। तो तुमने वो 22 पोर्ट को ऑन कर दिया है, 27017 पोर्ट को ऑन किया है? स्क्रीन शेयर करो, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही तुम्हारी। सर भी स्क्रीन शेयर तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब EC2 नहीं है तो EC2 टर्मिनेट होगी। ओके, तो EC2 इंस्टॉल इंस्टॉल तो करो, या फिर कुछ कर मैं यूज। स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, तो वर्चुअल मशीन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर तुम्हें अगर एक्स्ट्रा अगर तुम्हें लोकल भी करना है तो लोकल भी कर सकते हो, क्योंकि कोड में मैंने लोकल होस्ट का डाल रखा है। इफ यू वांट टू डू इट वाया लोकल देन इट इज ओके। अदरवाइज जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, जो तुम्हारे सिस्टम का स्ट्रक्चर, इस कोड का स्ट्रक्चर होगा, वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे तुम्हें करना है। सी, स्क्रीन मेरा विजिबल है? Yes. तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये ऐप इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं क्लोज करता हूँ। सो दिस एप्लीकेशन इज हैविंग डेटाबेस। तो ये डेटाबेस का वो है कि किस तरीके से क्लाइंट से कनेक्ट करना है। एक इसमें हमारे पास एक .env फाइल है जिसमें API की है अभी, लेकिन इसमें हम लोग मोंगो का URL भी डाल सकते हैं। पता नहीं, आई थिंक वेयर इज दिस, यस। सो इस डॉकर फाइल में हमें मोंगो का URL, मोंगो URI भी डाल सकते हैं इस .env फाइल में, जो प्रोजेक्ट का तुम्हारा डायरेक्टरी होगा with the database और env फाइल। you can go ahead with that and use it। मुझे लगता है कि तुम्हें मैं ये दे दूं, ये वाला कोड, ताकि तुम इसको सही से रन कर पाओ। डेटाबेस डॉकर फाइल। सो ये डॉकर फाइल कुछ इस तरीके से है। सो हेयर यू आर पासिंग दीज थिंग्स, जेम API की, दो मैं API की यूज कर रहा हूँ अभी, और इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने मोंगो का URL और का API की डाल रखा है। इट वाज इस प्रोजेक्ट को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा था AI के तरफ, दैट इज व्हाई। एंड इफ यू डोंट हैव एनी environment variable for the Gemini API key, then you should ignore it। लेकिन तुम अभी सर ये सेटअप चीज समझ के बाहर है, आर्ग्यूमेंट इन्वायरमेंट की डॉकर फाइल में। पूछो। Like this thing we haven't Covered. used till here. Like, what is this Gemini key and Mongo URI and these things वही are not there. सी, ये जो है ना Gemini API की, यहाँ पर जो .env फाइल बनाओगे, तो मोंगो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, मोंगो URI में तुम ये जो है एप्लीकेशन का तुम सिर्फ और सिर्फ URI देते हो, ठीक है। और ये मोंगो URI जो होता है, ये डॉकर फाइल में जब जाता है तो आर्ग्यूमेंट का जो तुमने आर्ग्यूमेंट पास किया है यहाँ पर, ये वाला ARG जेमिनी, सॉरी, मोंगो URI, तो इस मोंगो URI को तुमने एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल, और इस मोंगो URI को एनवायरनमेंट वेरिएबल में तुमने .env के थ्रू पास कर दिया। दैट इज वाई ये जो है, अब जो है ये यहाँ पर अगर तुम इसको पुश भी कर दोगे, तो ये जो है इस .env फाइल के साथ बिल्ड होगा, ठीक है। और इस .env फाइल में तुम्हारे ये दो API कीज है, एक API की है और एक में URI है।
तो इसको ये यूज करेगा, ठीक है। हेलो। Yes, yes. So who will provide the API key? एपीआई की जेमिनी के लिए मैंने बोला ना कि ये मैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा था, दैट इज वाई। तुम्हें तो अभी मोंगो का यूआरआई बनाना है, मोंगो का यूआरआई तो बनाओ आईपी एड्रेस का और एडमिन में आईडी और पासवर्ड के साथ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा मोंगो का यूआरआई। Hmm. कॉपी स्ट्रिंग, ये देखो मोंगो का ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, ये इस तरीके से दिखेगा। दिखा? जस्ट इग्नोर इट, अभी इसको इग्नोर कर देते हैं, सॉरी इसको इग्नोर करो। अब मोंगो का जो यूआरआई है ये है, अब ये जो है ये पास होगा तुम्हारे, मान के चलो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए .env फाइल यूज करते हैं, क्योंकि .env फाइल बाय डिफॉल्ट जो होता है इग्नोर रहता है, डॉट इग्नोर Hide बाय रहता डिफॉल्ट, है। हाँ बाय डिफॉल्ट हिडन रहता है until and unless तुम सेपरेटली जाके MongoDB जो है गिटहब में तुम इसको MongoDB के यूआरआई को सेपरेटली तुम कॉन्फ़िगर ना करो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। सॉरी सी, तो मैंने ये जो मोंगो यूआरआई है इसको मैंने कर रखा है सेपरेटली स्टोर। तो जब भी इमेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा था तो ये .env से नहीं उठाकर ये यहाँ के इन्वायरमेंट वेरिएबल जो यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है गिटहब के रिपोजिटरी में CI/CD पाइपलाइन चलाने के लिए गिटहब एक्शंस के, उसके कारण जो है वो वहां से उठा रहा है, ठीक है। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन लोकल सिस्टम तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। So we can create manually .env file. हाँ .env फाइल को इंस्टॉल करो, तुम मैनुअली कर सकते हो, स्क्रीन शेयर करो, कोई तो करो स्क्रीन शेयर, जिसका चल रहा है एटलीस्ट लोकल पे वही तो स्क्रीन शेयर करो। हाँ खोलो, इसके बाद तुम VS कोड तो खोलो। VS Code? हाँ VS कोड, जहां पर भी तुम कोड लिख रहे हो नहीं, आई कोड थिंक तो हम डायरेक्ट यहीं लिख रहे हैं। तुम्हें लगता है इज इट अ गुड वे, कम से कम है तुम्हें तो यूज करना चाहिए VS कोड। स्टार्ट करो VS कोड, खोलो कहीं पर VS कोड एटलीस्ट। जब प्रोजेक्ट का तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं दिखेगा तो तुम चेंजेस और एरर भी नहीं देख पाओगे ना एग्जैक्टली कहाँ है। ठीक है, ये फोल्डर। बार बार पुल करने का जरूरत नहीं है, जहां पर ये तुम्हारा है उसी फोल्डर को VS कोड के साथ खोलो तो सही। ये तो टेराफॉर्म में तुम बना रहे हो, डायरेक्टली VS कोड में तुम खोल सकते हो इसको। फाइल में जाओ, यहाँ पर ऊपर फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर, क्या कर रहे हो, फाइल में जाओ, नीचे ओपन फोल्डर। तुम्हारे पास एक ही फाइल है? ये फाइल मैं प्रोजेक्ट पुश करना पड़ेगा, एक सेकंड में पुश करता हूँ। उसको मैंने पुश किया था आई थिंक। नीरज तुम क्या कर रहे हो? हाँ ये रहा। इस पूरे को खोलो मैं तो सर सही। अभी समझने की ट्राई कर रहा हूँ हो क्या रहा है सर अभी तो। तुमको कहाँ से ही समझ में आ रहा है ये तुम बताओगे तो मैं प्रोसेस भी करूँ। मतलब नहीं, अभी मतलब हम करने क्या वाले एक्चुअली वो प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, वो मेरे से रन हो गया था। मैंने .env फाइल बनाई थी, लेकिन मैंने उसमें मतलब जो कंपोज फाइल होता है उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने सिंगल सिंगल स्टोर किया था। लाइक डेटाबेस होस्ट का नाम ये दे दिया, डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड, फिर मैंने उसमें डॉलर के थ्रू यूज किया था। अभी वो मेरी कंपोज फाइल दिख नहीं रही एक्चुअली, वो पता नहीं मैंने कहाँ बना दी थी, इसीलिए। इसीलिए मैंने बोला था कि एक सेपरेट ब्रांच बना के जो है कोड को पुश करने के लिए। चलो इस कोड कोड को पुश हम अ, चलो दूसरे मैं रिपोजिटरी में कोड पुश कर सकते हैं अदर रिपोजिटरी में। अदर रिपोजिटरी में नहीं, मैंने तुम्हें एक्सेस दिया था ना उसका, तो तुम एक सेपरेट फाइल सेपरेट ब्रांच बनाओ गिट में, गिटहब में, और वहां पर पुश कर दो, अपने नाम से बनाओ और नीरज का ब्रांच, मेन ब्रांच को वैसे ही का वैसे ही रहने दो। और अपने उसमें कोशिश करो कि VS कोड यूज किया करो। ये जो है ये डॉकर फाइल जो तुमने यहाँ पर बनाया है
इसको पहले लोकली रन तो करो। लोकली रन तो किया ना सर, जब भी तो ठीक है ये शो हो रहा है। चलो ठीक है, अब डॉकर फाइल बनाओ, इसको बिल्ड करो इसका इमेज। Docker। लो मैं तुम्हें डॉकर कंपोज फाइल का भी स्ट्रक्चर देता हूँ। कहाँ दूँ, चैट पर? ठीक है। अगर मल्टी ब्रांच चलाना है, मल्टी कंटेनर चलाना है, तो मैं तुम्हें डॉकर कंपोज का भी ये दे रहा हूँ। ये लो, डॉकर कंपोज का मैंने फाइल भेज दिया है। डॉकर कंपोज का तो हमारे पास पड़ा हुआ था। ये देखो जो मैंने भेजा है, इसमें तुम्हारा लोकल मोंगोडीबी का भी होस्ट चलेगा, हम्म, लोकल होस्ट, ठीक है, और ये भी चलेगा। ठीक है। ये मैंने नीरज लिखा नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। इसमें तुम्हें चेंज करना पड़ेगा कंटेनर का नेम वगैरह, ठीक है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। नीरज। हाँ हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मैंने भेज दिया है, तो अब डॉकर फाइल से डील अगर नहीं करना चाहते हो, मतलब डॉकर कंपोज के थ्रू मल्टीपल कंटेनर चलाना चाहते हो, तो इसको यूज करो और इसमें चेंजेस। तुम अगर बोलोगे तो मैं खुद जाके चेंज कर दूंगा, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होगा ना, जब तक तुम उसको फिर प्रैक्टिस नहीं लेके। इसको फुल स्क्रीन करो भाई, इसका फुल स्क्रीन करो जरा। हो रहा है, शो हो रहा है। हाँ 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 भाई। ठीक है, ये हो गया डॉकर कंपोज, ये डॉकर फाइल हो गई। हम्म अब इसमें .env फाइल बनेगी। हम्म। ठीक है। हाँ बनाओ। और डॉट का डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो, लोड डॉट का पिप इंस्टॉल करो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में। और तुम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम क्यों नहीं करते हो? मैंने उस दिन भी बताया था कि वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया करो, फिर तुम वहां जा रहे हो। यहाँ का व्हाट इज टर्मिनल। दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट? वर्चुअल इन्वायरमेंट ये होता है पाइथन में कि जब भी ना तुम मल्टीपल प्रोजेक्ट से डील कर रहे हो, ठीक है। एक ये छोटा प्रोजेक्ट बनाया तुमने बैकएंड, ठीक है, जिसको तुम बैकएंड बोल रहे हो। और इसके बाद क्या होगा कि फिर तुम्हारा कोई दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मशीन लर्निंग पे था, या जेमिनी एपीआई पे, या फिर कुछ भी एपीआई के थ्रू काम कर रहे थे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है एक तुमको आइसोलेटेड पाइथन के प्रोजेक्ट को यूज करने के लिए देता है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है, जिसमें वो तुमको क्या होता है कि डिपेंडेंसी का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, दूसरे प्रोजेक्ट के साथ डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। एंड दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट इज लाइक समथिंग। वो मान के चलो कि अभी तुम फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट के लिए तुम एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए। अब तुम एक जैंगो का प्रोजेक्ट करोगे पाइथन में, तो उसके लिए फिर क्या करोगे तुम कि एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करोगे, और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाके तुम अपना सारा डिपेंडेंसी जो है जैंगो के बेस, उस जैंगो प्रोजेक्ट का जो डिपेंडेंसी है जो पाइथन के कोड के लिए है, उसको इंस्टॉल करोगे। तो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है, जिसमें तुम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है एक ही सिंगल सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे तुम कर सको। So all these things will be done in VS Code। But हाँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का तरीका है, टर्मिनल में जाओ, खोलो यहाँ से टर्मिनल। क्या करना है इसमें? पहला टर्मिनल तो खोलो, कंट्रोल। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो देखो कहीं नेट पे देखो, यहाँ पर मैंने बता रखा है वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं। रुको मैं बता रहा हूँ। इसमें डिपेंडेंसीज अभी मिसिंग है, एक बार देखता हूँ। डिपेंडेंसी तो मिसिंग होंगी ही ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए। नहीं, ये तुमने कोड पुल ही नहीं किया है, पुश क्लोन ही नहीं किया है अपडेटेड वन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो दे देगा। तुम वर्चुअल एनवायरनमेंट तो बनाओ पहले। और देखो मैं पहले ही बोल दिया था कि जो प्रॉब्लम है कि थ्योरी से, तो नीरज तुम एग्जैक्ट अगर थ्योरी चाह रहे हो वर्चुअल एनवायरनमेंट का, तो तुम देख लेना थोड़ा। लेकिन थ्योरी जो नहीं चाह रहा हूँ मैं, वर्चुअल नोड क्रिएट कैसे करते हैं समझ मत रहे। वो तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। खोलो तो सही कोई इंसान, टर्मिनल खुला हुआ है,
अब हाँ इसका खुला ना मोहित का। पाइथन 3 हाइफन एम, पाइथन 3 हाइफन एम, वी एन वी, ENV. वी वी ई एन वी, वी ई एन वी स्पेस जो भी तुम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम देना चाहते हो। तो नॉर्मल लोग जो है वी एन वी देते हैं, तो तुम भी वी दे सकते हो। करो इंटर। चलो, सो वर्चुअल पाइथन वाज नॉट फाउंड। अच्छा, ये तुम्हारा विंडोज सिस्टम है ना, नॉर्मल पाइथन करो इसमें, पाइथन 3 मत लिखो। तो Python 3 कहाँ यूज होगा? ये भी नहीं पाइथन होगा। 3 जो है ना मैक एनवायरनमेंट में होता है, क्योंकि मैक या लिनक्स में ये होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि अच्छा, वर्ड्स पाइथन वाज नॉट फाउंड, पाइथन नहीं है क्या तुम्हारे सिस्टम में? नहीं, ओफो, इंस्टॉल करो फटाफट भाई। नीरज तुम्हारे में है? फटाफट तुम स्क्रीन शेयर करो नहीं सर, पाइथन। ये नहीं तो है? सर पावर शेल है ना, पावर शेल की कमांड तो अलग चलेगी। पाइथन थे तो मेरे में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो तो सही। एक सेकेंड। तुम इसको बदल भी सकते हो, पावर शेल को जो है नॉर्मल CLI में भी कर सकते हो। VS कोड खोलो, मैं बताता हूँ कैसे चेंज करना है। प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के साथ खोलना जहाँ पे प्रोजेक्ट हो तुम्हारा। मैंने प्रोजेक्ट सर मैं भी लिनक्स पर ही चला रहा था, मैंने भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। इतना आइडिया नहीं था कि कैसे स्ट्रक्चर VS कोड बनाते हैं, रियल लाइफ में कैसे काम। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर इज नॉट समथिंग। तुम्हें मैंने बोला था कि कोड को जो है क्लोन कर लेना अपने सिस्टम में एक फोल्डर में, ताकि वहां पर सारा हमने तुम सर जो भी लिनक्स कोड। पर ही क्लोन कर लिया था ना। कौन से लिनक्स पे क्लोन कर लिया था? ये लोकल वाला जो है। लोकल भी लिनक्स है तुम्हारे पास? पता नहीं है, विंडोज में पता मुझे विंडोज का थोड़ा इन्वायरमेंट का थोड़ा दिक्कत होता है, ये पॉसिबल तो उबंटू, तुम। उबंटू है मैंने सर ये। विंडोज में सेपरेट उबंटू इंस्टॉल किया हुआ है ना, देखिए ना चलता है। हाँ समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, वॉट एवर यू आर जस्ट वर्चुअलाइजेशन का यूज करके। लेकिन उससे फायदा फिर ये हम्म। है कि तुम, उससे बढ़िया है कि अभी तुम इसको यूज कर लो। मेरा जो कोड है वो विंडोज सपोर्टेड भी है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो कोड है वो क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, तो जल्दी फटाफट कोड को क्लोन कर लो भाई। कोड को तो क्लोन करो, कोई एक फोल्डर खोलो जिसमें तुम क्लोन क्लोन कर सको कोड कोड को। यहीं बना लो या कहीं पर भी बना लो, एक फोल्डर बनाओ और ट्राई करो, ट्राई टू डू दिस ऑल विद द सिद्धू। टर्मिनल। क्लोन करो कोड को यहाँ पर। कोड को सर क्लोन करने के VS कोड से फोल्डर खोलना पड़ेगा, वहां जाके करना पड़ेगा। VS कोड एक से क्यों सेकंड करना? देखिए, लाओ लोकल मैं में करूँ, कोड कैसे क्लोन होगा। हाँ मैं बताता हूँ, प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड भी रहे। तुम्हें कुछ चीज बेसिक भी बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है, देखो दोनों दोनों। चलो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो, आई गॉट यू गाइस। एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाते हैं, ट्यूटोरियल, और उसके अंदर ट्यूटोरियल किया, ठीक है, गिट क्लोन। अब यहाँ पर गिट क्लोन करेंगे। सर ये तो सर पता है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यही तो किया क्लोन था। कहाँ किया है तो तुमने? सर हम लोकल पे हमने लोकल। डॉकर से चलाया है, तो हमने गिट तो रिपोजिटरी क्लोन करी होगी ना उससे। ये तो सर किया हुआ है, बट आप चाह रहे हो कि ये कोड VS कोड में ओपन हो, राइट? मैं बता रहा हूँ वो भी कोड VS कोड में कैसे ओपन होगा। खुल गया? इसमें कोड क्यों नहीं आया? इसमें कोड नहीं है। है तो सही।
नहीं है इसमें कोड, पूरा का पूरा ही कोड मुझे लगता आई है थिंक यू 2 रिपोजिटरी दी थी शायद। ये लगता है ये कोड ही पुश नहीं हुआ। एक और कौन सा रिपोजिटरी दिया था मैंने तुम्हें? एक सेकंड भेजता हूँ। ये रहा, यहाँ जाके ये अपडेट हो गया है authentic। देखो यहाँ पर अब VS कोड, इसमें मुझे लगता है, हाँ ठीक है चलो। टर्मिनल खोला, पाइथन इंस्टॉल करो तुम, पाइथन 3-mv। ये जो है ये मैक का कमांड है। यहाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर लिया, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। अगर तुम जो है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ नहीं क्रिएट करके, यहाँ पर नहीं, इस बैकएंड फोल्डर में नहीं क्रिएट करके करना चाहते हो तो sudo rm, फिर हटा देते हैं इसको यहाँ से, सॉरी। पता नहीं आज थोड़ा सा एफिशिएंसी में कमी आ रहा है मेरे। कोई नहीं सर। तबियत खराब हो जाने के बाद ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कंसंट्रेशन में। कल तो और हालत बुरा था। चलो तुम पाइथन इंस्टॉल कर लो भाई फटाफट, अगर किसी ने नहीं किया है तो। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड क्लोन कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग टारगेट करेंगे कि इसका जो है हम लोग सोर्स स्लैश पिन स्लैश, और विंडोज का भी मैं ट्यूटोरियल तुम्हें दे देता हूँ, शायद आई एम, मेरे पास है विंडोज का भी, कैसे विंडोज में वर्चुअल एनवायरनमेंट चलाना है। कहीं ना कहीं होगा। चैट जीपीटी पे वैसे तुम देख सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने बना कर रख रखा है। ये भी जो है विंडोज बेस्ड सिस्टम के लिए नहीं है। प्रोजेक्ट फोल्डर। ये रहा, यहाँ पर तुम्हें वर्चुअल एनवायरनमेंट लिनक्स और मैक के लिए है, और लिनक्स और सिर्फ मैक के लिए ही मैंने बताया है।
ये लो, करो एक्टिवेट फटाफट। इसमें और कोई लोग नहीं है क्या? हेलो और कौन मतलब? नीरज, आई थिंक यू गाइस, तुम लोग साथ ही हो क्या? नहीं, वो दिल्ली में है, मैं गुजरात में हूँ। तो मुझे दिख सर नहीं रहा। सर हम तो सर उस दिन से साथ ही हैं, 3-4 दिनों से। अच्छा, तो तुम लोग दिल्ली में ही हो? नहीं नहीं, ये गुजरात में है और मैं दिल्ली में हूँ। वैसे हम साथ में ही हैं म्यूजिक क्लास में। हाँ हाँ हाँ, मुझे दिख नहीं रहा था यार, स्पॉटलाइट इज ऑन, आई थिंक दैट इज व्हाई। मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे, तुम चेक करो इसको जरा, एक्टिवेट करो वर्चुअल एनवायरनमेंट और एप्लीकेशन को लोकली रन करो। आज डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज क्रिएट करके ही जाएंगे सही तरीके। टू ओपन वर्चुअल मोमेंट। मैंने निकाल के दे दिया, इतना काम तुम चैट जीपीटी से कर सकते हो। सर वही कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट आपने कर भेज रहा हूँ दिया अब। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको बेसिक्स एटलीस्ट ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा सा तुम्हें पता हो, क्योंकि अगर ये बताना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता है फिर हमारा इससे जो है एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा। तो अगर तुम लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर लो कि क्या क्या बेसिक हमें क्लियर करना है, या फिर क्या क्या हम लोगों को बेसिक काम करना है, तो देन वी सर कैन। वो तो आइडिया ही नहीं है ना अभी, सर तो कोई कहाँ से बताने पॉइंट वाला आउट नहीं था करेंगे? कि ठीक ये है, भी कुछ मत चीज ये होता तो है। बेसिकली रियल टाइम में कैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसका आइडिया नहीं है, तो हम कहाँ से इशू पॉइंट आउट करें? तो ये चीज देखो, हम यही चीज बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तुम मेरे से तो बताओगे भाई। हम तो यही बात बोल रहे हैं तुमको इतने दिनों से कि हाँ, हमें आपने बोला कि प्रोजेक्ट क्लोन करना, हमने लिनक्स में क्लोन कर दिया। लिनक्स में क्लोन करने के लिए नहीं है। यही तो बात है कि देखो, तुम्हें जरूरी नहीं है ना कि अब मान के चलो किसी कंपनी में दिया, तुम्हें मैक दे दिया, तो फिर तुम क्या करोगे? सीख लेंगे। सीखने का जरूरत ही नहीं है ना तुम्हें, बस बेसिक देखो, टर्मिनल के कमांड्स जो है आइडियली जो है वो लगभग लगभग सेम है मैक, लिनक्स और विंडोज के। विंडोज में पावर शेल आ जाता है, तो पावर शेल जो है अब थोड़ा सा और एडवांस हो गया है, तो कुछ कुछ जो चीजें हैं जो तुम लिनक्स में यूज कर रहे हो वो पावर शेल में यूज कर सकते हो, कुछ कुछ कमांड। तो उस पावर शेल के कमांड के जो पावर्स इन्हांस हुए हैं उसको लेवरेज करना पड़ेगा तुम्हें। तो किसका स्क्रीन शेयर है जरा देखें। भाई शेयर करो यार। सर ये हाँ आपने हाँ तो वर्चुअल ये क्रिएट करने का बताया ना सर, पहले तो हाँ, पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें। 2 मिनट लगेगा भाई, 30 MB का एप्लीकेशन है, फटाफट कर लो। एक भाई सेकंड। शेयर करो, VS कोड करते हैं। python.org पे जाइए और वहां से क्रिएट इंस्टॉल कर लीजिए। आप लोग डेवलपमेंट और ऑपरेशंस दोनों सीखने आए, तो थोड़ा पार्ट तो आपको डेवलपमेंट का पता होना चाहिए ना। ये कि मैं यहाँ आ गया, मैं आ गया ये पाइथन, ये रहा। तो इंस्टॉलिंग किया था यहाँ से, तो यहाँ पे ओपन तो हुआ था कुछ। क्या ओपन हुआ था? विजुअल स्टूडियो से क्यों जाना है? python.org पे जाओ यार, वेबसाइट खोलो इसका, डाउनलोड करो, डाउनलोड्स पे जाओ, ऑल रिलीजेस नहीं, लेटेस्ट वर्जन नहीं करना है अभी उतना स्टेप। ये चीज थोड़ा सा हमेशा याद रखना कि लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन करना है, तो एक वर्जन पाइथन का हमेशा नीचे जा सकते हो तुम, ठीक है? तो जैसे 3.13 है, तुम 3.12 या 3.11 यूज कर सकते हो। 3.12 में कोई भी यूज कर लो या 3.11। तो 3.11 जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो तुम 3.11 इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करो, डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। कौन सा वाला है वर्जन? ये तो कुछ और है। जिप टारबल, बैक जाओ। लगता है मुझे ये देना पड़ेगा तुम्हें।
python.org पे से निकाल के कहाँ से डाउनलोड हो गई? यहाँ पर डाउनलोड करो ना, यहाँ पर ये क्लिक ये किया था से तो तुमने? कर रहा हूँ। ये पेज ओपन हो रहा है। नीचे आओ, gzip source starboard। ओके रुको, मैं दे रहा हूँ। All releases 3.13, looking for 3.11। That Python 3.11 cannot be used on Windows 7 or earlier. Okay, ये तो ठीक है। 10 13 इसमें ना ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका 3.11 का, नो फाइल फॉर रिलीज, और उसका 7 दिख 13 का दिख रहा है। 13 12 11। हाँ जी, हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? पाइथन इंस्टॉल करने के लिए चैट जीपीटी चला रहा है। मैं ही चला रहा हूँ उसे। सर वो वही तो मैं मैंने भी देखा था सर, ऐसा नहीं है। देखो चैट जीपीटी को, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या करना है। ओपन करूं? हाँ ओपन करो। चलो, ऐड पाइथन 3.11 टू पाथ, हम्म कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, सारे में चेक बॉक्स कर दो, सारे में चेक बॉक्स कर दो। एक ही यूजर है सर इसमें। हाँ इसीलिए दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज के डिपेंडेंसी के चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर आपने पूजा इधर ही कराई थी क्या, लक्ष्मी नगर की साइड? हाँ भाई हाँ, आना था तो तो देखा बता दिए होते। सर, आपने बताया नहीं, मैं आ जाता, उस दिन मैंने ग्रुप कुछ में हेल्प कर भेजा तो देता था आपकी। भाई। उस दिन ग्रुप में भेजा तो था कि भाई मतलब हम लोग करवा रहे, तुम पूछते तो आ जाते यार, इसमें आपका आने में क्या? स्टेटस देखा था ना सर, वहाँ पे लिखा था लक्ष्मी नगर, मेरे इधर से, मैं मंडावली में रहता हूँ। अच्छा वहां से तो नजदीक है भाई, आ जाते, क्या दिक्कत था, मीटअप भी हो जाता। कोई नहीं सर, अब अगली पूजा में आ जाएंगे। अब वैसे हम लोग, मैं वहाँ लक्ष्मी नगर जाते रहता हूँ, मेरे भैया रहते हैं वहां, तो मैं अच्छा जाता अच्छा रहता हूँ, मेरे भैया और मेरे मामा रहते हैं वहां पर, तो अच्छा अच्छा। वहाँ जाता रहता हूँ अभी कहाँ वीकेंड्स रहते पे। हो आप? मैं रहता हूँ गुड़गांव ना, ओके, गुड़गांव। जा रहे हो। तुमने कर लिया नीरज पाइथन इंस्टॉल? थोड़ा थोड़ा मैं साइड में पाइथन भी बताता चला जाता हूँ तुम्हें। नहीं सर, कर रहा हूँ अभी। करो प्लीज जल्दी। कल हम विदाउट ENB में ऐड करके कर रहे थे ना, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा था ये चीज। ये नहीं होगा कनेक्ट अभी मोंगो डीबी को, तुमको जो है सिर्फ और सिर्फ तुम मोंगो डीबी कंपास इंस्टॉल किया है तुमने, मोंगो डीबी इंस्टॉल भी नहीं किया है अच्छे तरीके से अपने लोकल सिस्टम में। लोकल सिस्टम में भी जब तक मोंगो डीबी का सर्वर इंस्टॉल नहीं करोगे तो हम्म चलेगा ही। मोंगो डीबी कंपास चल रहा है तुम्हारा, देखो तो चला गया। कनेक्ट करो यहाँ पर लोकल होस्ट से, फेल टू रिव्यू, डिस्कनेक्ट करो, अब कनेक्ट करो। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ है इसीलिए। हम्म। इसमें टेम्प आएगा, एडमिन आएगा और एक यूजर आएगा। जब तक देखो बेसिक से स्टार्ट, तो कुछ तो हमेशा बेसिक से करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन तुम लोग डॉकर फाइल वगैरह समझ गए थे, तो मैंने बोला कि डॉकर फाइल बना लो, उसको कनेक्ट कर लो। मुझे ये नहीं पता था कि यू विल रन सर इनटू डॉकर फाइल तो क्या है, जब कोर्स कर रहे थे तो उसमें बनाई थी 8-10 बार, तो डॉकर फाइल तो बनानी समझ में आ गई। देखो अभी अब ये अच्छा है ना कि मुझे डॉकर फाइल में अब तुम्हें सीएमडी, एंट्री पॉइंट और ये सब बताने का जरूरत नहीं है। फ्रॉम, बेयर मेटल, पेरेंट इमेज और बेस इमेज बताने का जरूरत नहीं है, ये सारा जो चीज। लास्ट वाली कमांड थी उसमें फास्ट ईपीए में, वो थोड़ी एडवांस कमांड थी, वो समझ में नहीं आई थी। अच्छा उसमें यूवी कॉन लिखा हुआ था, हम जनरली यूज करते थे यूनिकॉर्न, पाइथन और f.py स्टार्ट करने के लिए सब। हाँ तो पाइथन जो है ना, ये पाइथन वाली का क्या है, कमांड।
यूविकॉर्न। तो ये क्या होता है कि सीएमडी में जब है तो जो फास्ट एपीआई है ना वो यूविकॉर्न को एज ए यूज करता है, ठीक है, एज ए सर्वर। WSGI जो एप्लीकेशन है स्टारलेट और पाइडेंटिक के लिए जो फास्ट एपीआई का है, तो अगर थोड़ा सा बेसिक तुम फास्ट एपीआई पे तुम अगर कुछ पढ़ोगे, ठीक है, तो उस तुम्हें पता चलेगा कि यूविकॉर्न जो है एक सर्वर है पाइथन को रन करने के लिए। जैसे कि जैंगो को रन करने के लिए, जो अगर तुमने जैंगो सुना होगा तो तुम्हें पाइथन ये फास्ट एपीआई भी तुम्हें समझ में आएगा कि इन सभी का अपना एक एप्लीकेशन एपीआई रन करने के लिए एक अपना सर्वर होता है। गनीकॉर्न होता है, गुविकॉर्न होता है और एक यूविकॉर्न होता है। तो यूविकॉर्न पे ही जो है पाइथन का फास्ट एपीआई रन होता है, ठीक है, और वो वहां से पोर्ट होके किसी भी दूसरे सर्वर पर जाता है। फास्ट एपीआई का रिसोर्स है और फास्ट एपीआई के ही लिए यूज किया जाता है। तो अगर फास्ट एपीआई तुम्हें फिर डेप्थ में जाना है तो एक दो बार खाली समय मिले तो एक दो घंटे तुम फास्ट एपीआई का कोई ट्यूटोरियल देख लेना बेसिक, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग बैकएंड के लिए फास्ट एपीआई का ही यूज करेंगे, ठीक है, मतलब पाइथन का किसी भी तरीके से अगर कहोगे तो जैंगो भी यूज कर लेंगे, लेकिन आजकल जो है पाइथन बहुत ज्यादा यूज में है क्योंकि तुम स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो और बाकी सब चीज भी। चलो पाइथन वो तो सक्सेसफुल हो गया इंस्टॉल। एक टर्मिनल खोल के पाइथन रन करके देखो, पाइथन टाइप करना और इंटर प्रेस करना। सीएमडी खोल लो या तो इसमें हो जाएगा। हाँ सीएमडी खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन लिखो, इंटर करो, नहीं हुआ इंस्टॉल, बैक जाओ, काट दो इसको। काटो, पाइथन 3 लिखो, नहीं हुआ। ये रीस्टार्ट करके ट्राई करता हूँ, अभी इंस्टॉल किया ना हमने। हाँ रीस्टार्ट करना पड़ेगा तुम। ठीक है, मैं रीस्टार्ट करके ज्वाइन करता हूँ। तुम्हारा नीरज हुआ इंस्टॉल? नहीं सर, मैं तो सब समझ में आ जाए, मैं तो बाद में रिकॉर्डिंग देख के आराम से कर लूंगा ऐसा। मैं तो ठीक, देख रहा हूँ हो क्या रहा है अभी तो ऐसा, देखो समझ अभी रहा हूँ। बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पाइथन इंस्टॉल करके तुम्हारे लोकल वो तो सिस्टम। समझ में आ रहा है, पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ हाँ, ऐसा। बाकी जो है तुम जो है कोड वहां पर मान के चलो कुछ चीज डॉकर फाइल में रन नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारे फाइल डॉकर फाइल में रन नहीं होगा तो उस चीज को लोकली रन करके तुम ये चेक कर पाओगे कि चीजें काम कर रही हैं। तुम डॉकर फाइल तब बनाते हो, तब क्रिएट किया जाता है आइडियली जब लोकली जो है एप्लीकेशन सही से चल रहा हो, ठीक है। हाँ, पहले लोकल टेस्टिंग होती है फिर। हाँ, तो लोकल फाइल करने के बाद फिर तुम डॉकर फाइल बनाते हो। डॉकर फाइल में सारे डिपेंडेंसीज, रिक्वायरमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर यू वांट टू डू तुम वो करते हो और इसके बाद फिर वो चीज होता है, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम अभी लगता है एक दो दिन हम बेसिक तुम्हारा देखो, जैसे कि डॉकर फाइल तुम बनाए तो रटा रटाया हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यूबरनेटिस में हम डिप्लॉयमेंट जब तुमको लिखने के लिए बोलेंगे तो वही तुम्हारा रटा रटाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम तुमसे पूछेंगे कि क्यूबरनेटिस में तुम एयरबैग बनाना शुरू करो, है ना, रोल बाइंडिंग और रोल क्रिएट करना शुरू करो, जैसे कि अब वो एक बार बनाया हुआ है सर, उसमें सर्विस अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है, वही सर्विस होता है अकाउंट ना। सर्विस अकाउंट बनाना पड़ता है फिर, और तुमको हम एक और चीज बोलते हैं कि OIDC को कनेक्ट करना है, तब क्या करोगे? मतलब कोई ओआईडीसी कनेक्ट मतलब। थर्ड पार्टी जो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर का यूज करना है, मतलब कि एक तो मुझे थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज करना है। एक केस ये हो गया, जैसे एज्योर का एडी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आइडेंटिटी सेंटर होता है, वो यूज करो। या फिर तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर मल्टीपल 10-15 नेम स्पेसेस हैं तो मुझे 3 ही नेम स्पेस पे काम करना है और मुझे 3 ही नेम स्पेस का एक्सेस चाहिए। तुम्हें जो है मनीष को जो है 4 नेम स्पेसेस पे वो काम कर रहा है तो 4 नेम स्पेसेस ही उसको चाहिए, ठीक है। उसके लिए तो आरबैक का यूज है जाएगा, वो हाँ, समझना पड़ेगा। हम्म, आरबैक में शायद हम सब नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हैं ना, हाँ ऑब्वियसली नेम स्पेस हाँ, डिफाइन कर सकते हो। तो उसका रोल उसी नेम स्पेस तक लिमिट हो जाएगा ना फिर। हाँ, रोल बाइंडिंग, सॉरी यार, रोल बाइंडिंग और रोल क्रिएशंस हाँ, होता रोल है। बाइंडिंग है। फिर वहां रोल से बनाते हैं फिर रोल बाइंडिंग होती है। फिर एक सर्टिफिकेट और डॉट सर्ट की और ये की जनरेट होता है। वो मैंने एक बार हो गया जेनकिंस सर। में किया था कनेक्ट करके, उसमें सर्टिफिकेट होता है कुछ,
वो हम जेनकिंस में डालते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो कनेक्ट हो गया था। चलो भूल पाइथन गया हो था। गया, पाइथन हो गया। अब जाओ, अब VS कोड खोलो। ठीक है, आ रही है सर आपको ये? अरे बोले तो रात में नहा लिए थे। विसर्जन के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गया। चलो यहाँ पर कोड जो है तुम्हारा, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, डॉट env, डॉकर कंपोज, मेन डॉट py फाइल। ठीक है। अब वर्चुअल मशीन, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करो, वही सेम कमांड यूज करते। पाइथन पाइथन -m venv क्या कर रहे हो? फोल्डर बना रहा हूँ सर। कैसी नहीं, 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 टर्मिनल में कमांड चला रहा। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने बोला क्रिएट करने के लिए। ओके ओके। पाइथन -m venv स्पेस venv। नो मॉड्यूल नेम VNV। VNV है कि VENV? venv भाई, venv मोहित भाई, इन्वायरमेंट का ENV। venv एंड स्पेस v। VNV, हाँ, इसमें और VNV या ओनली VNV? दोनों में venv। सेम है। ओके। नहीं हुआ? हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है। We notice हो, a new environment has been created. Do you want to select workspace folder? यस। अब एक्टिवेट करो इसको। स्क्रिप्ट हाइफन समथिंग होगा, venv स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। ये क्या था? नहीं, इस तरफ को भेज रहा हूँ, रुको भेज रहा हूँ। मैं भी पहले बार ये गूगल मीट यूज कर रहा हूँ, तो दिक्कत होता है मुझे इसको यूज करने में भी। भेज दिया। कंपनी में तो सर टीम्स यूज होता है ना मोस्टली। हाँ, है हमारे यहाँ, फिर जूम कॉल भी है बहुत जगह। अच्छा अच्छा। बहुत पहले तो हमारे यहाँ ये भी होता था, इसको जो है एक्टिवेट नहीं करने देगा। रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड। ये वाला स्क्रिप्ट रन करो जरा। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड स्कोप प्रोसेस, ये लो। अब रन करो फिर से। क्रिएटेड है भाई, तुम्हें वर्चुअल ओ, एनवायरनमेंट क्रिएट करना था। ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। हो गया। अब इंस्टॉल करो इसमें जरा ये डिपेंडेंसीज, जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी का जो डिपेंडेंसी है वो install करो। कैसे करना है वो? पिप पिप इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा अच्छा, पिप। इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। ये वाला आएगा ना इसमें? नहीं, अभी नहीं आएगा। हाँ, इसी में आ जाएगा। TXT ऐसे रह गया, स्पेलिंग सही करो। रिक्वायरमेंट्स। मेंस ओके, मेंस हाँ हाँ हाँ, एंटर। यस। तो बेसिकली हमने पाइथन इंस्टॉल किया है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है, राइट? यस, अभी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं। डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया है, अब रन करो हमारे इस। पास पाइथन का दूसरा प्रोजेक्ट भी हो तो साथ में, तो दूसरा साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। एक अलग तुम फोल्डर क्रिएट करोगे। अब जैसे ये वाला था बैकएंड अटेंडेंस, बैकएंड। एक हम्म नया फोल्डर बनाओ जिसमें कोड हम्म क्लोन करोगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट इसीलिए होता है कि जैसे कि मान के चलो कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने हम्म वर्चुअल इन्वायरमेंट में कर रहे थे, हम्म ठीक है। तो हम क्या किए कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरे जितने डिपेंडेंसीज थे उसको मैंने फ्रीज किया और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में स्टोर कर दिया, ठीक हम्म है।
तो अब क्या है कि हम तुमको बार बार तुमको लिख कर नहीं देंगे कि ये मतलब जितना भी डिपेंडेंसी था तुमको इंस्टॉल करना है, वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में ऑलरेडी है। मैंने कोड को पुश कर दिया। अब तुम गए, कोड को तुमने क्लोन करा। स्पेसिफिकली ये अच्छा रहता है। ये थोड़ा सा मान के चलो पाइथन डेवलपमेंट में एक थोड़ा सा समझ लो कि एक डॉकर टाइप का जो है एक इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए क्रिएट कर देता है पर्टिकुलर पाइथन एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में सारे डिपेंडेंसीज हैं। तुमने अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करा, तुमने वहां पर वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए जाके रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल कर दिया, जितने भी फाइल थे उसके डिपेंडेंसी थे। अब क्या होगा कि जब तुम उसको रन करोगे तो तुम्हारे यहाँ भी वो रन होगा वही सेम डिपेंडेंसी के साथ। हो सकता है माइनर चेंजेस होंगे, और इसी चेंजेस को हटाने के लिए और ये जो जितना भी डिपेंडेंसी और ये सब वाला इशू था, इस सब को हटाने के लिए ही डॉकर का फिर यूज करना शुरू कर दिए थे हम। क्योंकि कहते हैं ना कि इट वर्क्स ऑन माई मशीन बट आई एम नॉट गोइंग, वी आर नॉट आपके गोइंग। मशीन में काम नहीं करेगा। हाँ, तो मैनेजर ये हमेशा बोलता है कि वी आर नॉट गोइंग टू शिप योर मशीन। राइट। तो अब चलो इसको रन करो जरा, यूविकॉर्न वाला जो कमांड है उसके थ्रू। यूविकॉर्न मेन कोलोन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। ओके, देखना पड़ेगा वो कमांड, एक सेकंड। देखो यूविकॉर्न मेन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड भेज रहा हूँ। मेक श्योर कि ये तुम मेन फाइल में हो। यहाँ पर एलएस करो जरा, यहाँ पर मेन वाई फाइल है। बैकएंड में हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। क्या एरर है जरा दिखाओ। कैन नॉट इम्पोर्ट नेम, नॉट ऊप- रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइपिंग। ऊपर से जाओ। चैट जीपीटी में डालू यार। एक मिनट रुक जाओ। ये हम यूज ये टाइपिंग इंपोर्ट फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, कहाँ पर है ये config डॉट पी वाई लाइन 4। जरा तुम ये कर रहा ये डेटाबेसेस में जाना इस कोड में। टाइपिंग का कुछ दिक्कत है। ऑथ फाइल खोलना, ऑथेंटिकेशन खोलना। मैं मैनुअल कर रहा हूँ, चैट जीपीटी इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम लोग भी यही चीज सीख लो। ठीक है, जब हम्म। अपने से खुद से ना हो तब जाके कर सकते हैं। ठीक है। बी क्रिप्ट क्रिप्ट करने के लिए ठीक है, यहाँ पर सीक्रेट की तो तुम्हें डालना पड़ेगा अपना, जब उसमें करोगे तब। इंपोर्ट नेम यूविकॉर्न मेन ऐप रीलोड। ओके, मेन डॉट पी वाई फाइल खोलो जरा। main.py। चल जाना चाहिए था बट व्हाई डिड नॉट रन। जरा आप देखो, चलो लंबा दोबारा एरर। ट्राई करूँ। नहीं, इसका चेक करो एरर क्या है। ये तो यूनिकॉर्न का एरर है कुछ। This unicorn is typing importing not required। इसको अपडेट कर दो, ये वाला कॉपी करके। नहीं हुआ। इंस्टॉल यूनिकॉर्न, कॉपी करो जरा। इफ अपग्रेडिंग री इंस्टॉल करना जरा यूनिकॉर्न को। फिर से इंस्टॉल करो यूनिकॉर्न।
अब रन करो जरा। सेम। नीचे आओ, ये चल क्यों नहीं रहा है? hyphen mpeg line 18 unicode module from typing import not required. ओके, क्या चेंज हो गया इसमें? जरा देखते हैं यूवी कौन कौन सा है इसमें। एनोटेशन टाइप में वैलिडेटर फास्ट एपीआई यूवी कॉर्न 0। यूवी कॉर्न का वर्जन चेक करना है इसमें तुम। पिप लिस्ट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में जाओ जरा। यूवी कॉर्न requirement.txt ओके। क्या है यूवी कॉर्न का वर्जन? नीचे आओ तो 0.34 है, ठीक है। ओके, ये क्यों नहीं डन हो रहा है? रुक जाना, मैं अपने में करता हूँ इसको। लेट मी डू इट इन माय स्क्रीन। विजिबल है स्क्रीन मेरी? पिप इंस्टॉल। मेरे में तो चल जा रहा है। तो इसीलिए तो डॉकर यूज करते हैं हम। नहीं नहीं, मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये तुम्हारे सिस्टम में क्यों नहीं चल रहा है? चलो इसको बाइंड कर देते हैं डॉकर फाइल में, नो इश्यूज। चलो लेट मी सी कि ये यूजर को रजिस्टर कर रहा है या नहीं। ठीक है, एक लोकल होस्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूजर ऑलरेडी एक्सिस्ट। ओके, यूजर रजिस्ट्रेशन इज डन। ये यहाँ पर लोकल होस्ट में क्रिएट हो रहा है यूजर। ठीक है, स्ट्रिंग 2। चलो
तो अब डॉकर कंपोज फाइल इसका एक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक डॉकर फाइल, किसने डॉकर फाइल इसका क्रिएट किया था जरा बताओ, तुम दोनों में से भेजो जरा जल्दी, कोई फटाफट करते हैं स्क्रैच सेल ठीक लिखने। है। भेजा गया किसी ने, अच्छा आ गया। डॉकर कंपोज चाहिए था ना आपको? डॉकर कंपोज नहीं चाहिए था भाई मुझे, डॉकर फाइल अच्छा चाहिए। अच्छा, एक सेकंड। फाइल भी तो दो भाई से। और ये भी थोड़ा, ये भी पूरा नहीं आया है, एक सेकंड को। व्हाट्सएप पे भेज। रीस्टार्ट ऑलवेज। व्हाट्सएप भेज दो ना भाई, पीसी से कॉपी करके व्हाट्सएप पीसी वाले भेज दो। थोड़ा तो टाइम तो लगता ही है। कोई दिक्कत नहीं है सर टाइम की। डॉकर फाइल ये रहा मेरा, कमांड एक्सपोज करना है, एक्सपोज। मिला क्या? हाँ भाई मेरे पास तो है ही मैं तो रखे रहता हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका इमेज बना या नहीं बना। ठीक है, रन वर्क डायरेक्टरी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ये कौन से उसमें है? कॉपी, ठीक है, वर्क डायरेक्टरी, रन, कॉपी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, रन किया, कॉपी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी वर्क डायरेक्टरी के बाद ये रहा, यहीं जाएगा ये। इसके बाद रन, फिर कॉपी, फिर एक्सपोज, फिर एमडी। चलो जरा देखते हैं रन करके। कोड यही रहेगा, कोड में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बेसिक एप्लीकेशन का कोड है, हम लोग पहले कोड को सक्सेसफुल रन करके देखते हैं। सर यहाँ पे मेन डॉट ऐप की जगह मेन डॉट पीवाई नहीं लिख सकते क्या सीएमडी में? मेन डॉट पी वाई, यहाँ पर ये यूनिकॉर्न का कमांड लिख रहे हो तुम एग्जैक्टली
जो तुम रन कर रहे हो लोकल मशीन पे, वो यही कमांड लिख रहे हो ना, जो तुमने लिखा था लोकल में। मैंने लिखा था यूवी स्पेस मेन कोलोन ऐप। तो मेन जो है तुम्हारे कमांड जो है एप्लीकेशन को पास कर रहे हो, मेन डॉट पी वाई। तो ऑटोमेटिकली पाइथन तो ले ही रहा है अपना एक्सटेंशन, उसको पता है कि मुझे पाइथन फाइल में ही मिलेगा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सर होस्ट क्या है इसमें? कोई भी होस्ट 0000। होस्ट तो तुम्हारा ये रहेगा ताकि तुम्हारा कनेक्शन कहीं से भी आता रहे, तुम्हारे इनबाउंड कनेक्शन तुम्हारा जो है हमेशा रहे इस कोई भी एप्लीकेशन पे, एक्सेस कर पाए। कोई भी एक्सेस कर पाए, मतलब इनबाउंड पोर्ट तो हम कनेक्शन। यहाँ लिखना जरूरी थोड़ी है। पोर्ट तो हम सर बाहर से भी तो एक्सपोज कर ही सकते हैं। जब डॉकर रन कमांड चलाते हैं उसमें भी -p करके पोर्ट एक्सपोज कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कोई भी, यहाँ लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, ऐसा या जरूरी जरूरी है? जरूरी नहीं है। कुछ चीज हाँ। इसमें जैसे अब देखो ऊपर जो है आजकल जो है लोग आर्क कमांड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब तुम पहले फ्रॉम कहते हैं ना कि डॉकर फाइल में एक चीज कहा जाता है कि डॉकर फाइल में ना सबसे ऊपर जो है फ्रॉम लिखा जाता है, उससे ही पहले लिखा जाता था आर्क, है ना, जिसमें तुम हम्म। आर्ग्यूमेंट में एज ए आर्ग्यूमेंट वेरिएबल में डॉकर पाइथन का वैल्यू तुम डाल सकते हो और उसको जो ये है रन आर्गुमेंट तो आज तक हमने भी यूज नहीं किया है। चेंज कर सकते हो। ये क्या हो गया भाई, नो सच होस्ट। अच्छा ये एक लगता है पाइथन अवेलेबल नहीं है, मुझे लग रहा है। हम्म, 3.9 दिया हुआ था हमने तो। 3.10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक है, ये वाला मैं तुम्हें भेज देता हूँ अपने सिस्टम पे, तुम रन कर सकते हो फिर। ये तो बनाया था तो है। हाँ एक ये तो बनाया था, ये तो कम, ये तो फाइल है डॉकर फाइल। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके इसीलिए देख रहा हूँ कि अभी तक ये बिल्ड ही हो रहा है। क्या देते थे पोर्ट बताओ? 8000। यही था ना? क्या हो गया? इमेज भी तो यूज करनी पड़ेगी, इमेज का नाम। सॉरी सॉरी सॉरी, माई ऐप दिए थे ना, पहले भी दे सकते हैं बाद में भी दे सकते हैं, क्या दें? डॉकर रन हाइफन डी माई ऐप। इमेज का नाम जो होगा। पोर्ट 8000 बाई 8000 यही दिया था ना? एग्जीक्यूट। मुझे भी तुम कंफ्यूज करा दोगे बेसिक के चक्कर में। ये तो डॉकर कंपोज का सेटअप है। क्या है यार, रन हो रहा है देखो। लेकिन अब जो है ये तुम्हारा ये डॉकर फाइल जब तुम इसको रन करोगे तो ये नहीं चलेगा, इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। ठीक है, जिसको तुम यहाँ से डीबग करके देख सकते हो।
चलो, ये तो कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंटरनल सर्वर एरर हो गया। अब इसको रिजॉल्व करते हैं डॉकर कंपोज फाइल के थ्रू, ठीक है। चलो, ला डॉकर कंपोज फाइल का स्ट्रक्चर भेजो। व्हाट्सएप पे भेजा है ग्रुप में। यही है ना, ये तो मैंने भी भेजा था भाई। अब इसमें हम चेंजेस नहीं बताएंगे, अब तुम बताओगे कि क्या क्या चेंज करना है। चलो बताओ। नेटवर्क बता। तो क्रिएट करना जरूरी थोड़ी है, बाय डिफॉल्ट कोई भी वो नेटवर्क तो ले ही लेगा। नहीं नहीं, मैं ब्रिज ये नेटवर्क। चेंजेस बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई। क्या पूछ रहा? चेंजेस बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें चेंजेस कौन से करूँ, बताओ। सही लग रही है चेंजेस तो, इन्वायरमेंट पास किया हुआ है, वॉल्यूम पे टेस्ट किया, उसमें क्या चेंज करें? चलो, तो बस डॉट एनवी वाला अभी भी थोड़ा डाउट है। .env के लिए जो है ना, मैं स्पेशली जो एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, वो मैं भेज देता हूँ, चलेगा। मैं पूरा .env का जो है थ्योरी ही बना देता हूँ। मैंने एक्चुअली डॉट एनवी बनाई थी, उसमें डीबी होस्ट में मतलब इंडिविजुअल वेरिएबल डिफाइन किए थे। हम्म। आपने कुछ सिंगल स्ट्रिंग डिफाइन करके रखी है सब कुछ। तो देखो, .env पे देखो, मैंने उस दिन भी पहले बताया था जब मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है, कि भाई हम तो वो काम कर रहे थे इसीलिए क्योंकि हम सिंगल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। सिंपल सा बात है। मैं मल्टीपल चीजों को मैनेज करने के लिए अच्छा था कि मैं वो उसको जो है सिंगल चीजों से मैनेज कर लूं, ठीक है। तुम उसको जो है 10 बार में तुम हर एक यूजर नेम को अलग रखो, तुम हर एक पासवर्ड को अलग जगह पे स्टोर करो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जितने बार .env, लेकिन फाइल तुम्हारा .env फाइल तो एक ही होगा। .env फाइल तो तुम्हारा एक ही होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एक एक हम्म। प्रोजेक्ट में तो एक ही होगा ना। ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट में एक ही होगा। अब उसके अंदर तुम कितने वैल्यूज स्टोर कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके उसको आर्ग्यूमेंट डॉकर फाइल में एज ए आर्ग्यूमेंट और env के थ्रू पास कर रहा हूँ। सिंपल सा बात है। चलो, मैं इसमें .env फाइल तो अब नहीं बना सकता, लेकिन इन्वायरमेंट मैं इसको सेट करना चाहता हूँ। इसको लोकल है उसमें चेंज कर देते हैं, रुक जाओ। ये क्या इंपोर्ट कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, मोंगो डीबी पुल हो रहा है अभी तक। सर जो आपने बिल्ड के नीचे कॉन्टेक्स्ट
और स्लैश ऐप है ये वर्क डायरेक्टरी का वो है क्या पाथ? बैकएंड होगा। हाँ ये बैकएंड होगा, दैट इज वाई ये यहाँ रन नहीं हो रहा था। सॉरी, इसको कंटेनर नेम को मैं माय फर्स्ट एपीआई एक मैंने व्हाट्सएप भेजा है, मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया था। एक मिनट बस, मुझे एक थोड़ा सा वक्त दो मुझे। बताओ क्या डिफाइन किया था तुमने। सही तो है, क्या दिक्कत है? और यही सब चीज जो है, जब तुम उसको जब यूआरएल जब तुम दोगे, जब तुम्हारे पास मोंगो डीबी का यूआरएल था कनेक्शन स्ट्रिंग, तुम्हें पता है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग में ऑलरेडी एडमिन और पासवर्ड रहता है। तुम देखो, ये उस दिन मैंने तुम्हें दिखाया था। हाँ, वो यूजर नेम पासवर्ड रहता है, समझ रहा फिर हूँ तुम मैं। उसको बार बार तुमको वो करने का जरूरत ही नहीं है। तुम 4 बार में कर रहे हो, ठीक है। .env फाइल को तुम यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस, तुम ये पता है डेटाबेस नेम जो है फास्ट एपीआई डीबी जो तुमने क्रिएट किया है, ये कोड में ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। देखो ये, हम्म समझे? ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू ये जो है इजीली हो जा रहा है। यहाँ पर पास कर रहे हो। अब मोंगो यूआरएल जो है तुम्हारा, इसमें जब तुम .env फाइल जो लोड .env करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अभी मुझे तुम कुछ समय दो, ठीक है। लाइक आधे घंटे में मैं इस, मुझे लगता है कुछ इस पाइथन के कोड में कुछ चेंजेस करने जरूरी हैं, तब जाके ये जो है डॉकर कंपोज चलेगा, ठीक है। तो लग रहा है टर्मिनेटेड विद एग्जिट कोड इतना। बैकएंड रन हो रहा है क्या ये लो तुम्हारा दोनों कंटेनर रन हो रहा है। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। ये अभी भी नहीं लेगा क्योंकि वहां पर हम लोगों ने .env फाइल को सही से नहीं करा है। चलो मैं आज का यही स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मैं ये डॉकर फाइल भेजता हूँ तुम्हें, और कुछ माइनर बग फिक्सेस हैं, मुझे लगता है कोड में चेंजेस करने होंगे। जो तुम .env वाला बोल रहे हो, मैं उसको .env को अलग से मैं स्ट्रक्चर कर देता हूँ। तो इस कोड को मैं पुश कर देता हूँ, और इसके बाद फिर तुम इसको रन कर सकते हो, ठीक है। और मैं उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है कर दूंगा, ताकि तुम्हें टेंशन ना हो। इज इट ओके? क्योंकि तुम्हें .env ही नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई दूसरा तरीका मैं ढूंढता हूँ जिसमें मैं तुम्हें बता सकूं .env को कैसे यूज करना है। ठीक है सर। है ना। और मैं इसको जो है थोड़ा सा मैं दवा वगैरह खा लूं, और इसके बाद फिर मैं तुम बैठता हूँ। और रात में किसी के पास टाइम हो तो बैठ जाना मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आधे एक घंटे फिर से। ठीक है, कितने बजे सर? टाइम ही टाइम है सर। तुम्हारे पास है तो तुम और नीरज बैठ जाओ, 10 11 11 बजे के पास देखें क्या, आसपास खाना वाना खाने के बाद। हम्म, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा दवा ले लेता हूँ, और इसके बाद फिर देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है सर। ठीक है।
ठीक है, ये रुक जाना जरा, मुझे इसको रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा। मैं इसको अपलोड करके फिर मैं